Good morning, class 10th. Today, we'll be looking at some questions and I'll be helping you in your homework so that your homework becomes a little bit easy to digest and you'll be able to do with the help of the examples that I'll be telling you today. So, your homework would be from question number 10 till 17. 10 is being included, and I'll do couple of questions in this video so that it's easy for you guys to understand what kind of questions will come. Okay, today in today's homework. So, we'll just see that if you have just observed in this exercise, many of the question does not have diagram. I am the one who have to make diagram, or you're the one, if you're doing this question, who has to make the diagram. So let's read the question and move forward. The question says an observer is 1.5 meter tall, is 20.5 meter away from the tower. So I know one thing, that there's a tower standing like this. This is the tower. I'm taking this as a tower. Okay, this is the tower and this is the man. Okay, and the man is how much? 1.5 meter tall. Please understand, this man is 1.5 meter tall. Okay, and the tower is 20 sorry, I don't have the tower is 22.20 meter 22 meter tall. Okay, and this is the level ground. This is the level ground. When they talk about height and distance, they talk about the level ground. And then they said determine the angle of elevation. In this question I have to find the angle, I don't have to find. And the distance between the man and the tower is 20.5. What is the distance? 20.5. But when the observer starts looking, he won't look from his foot. Where does he see from? He sees from, you all see from your eyes, and the eyes is on head. So I need to understand this, that a man, the angle that is going to be made from here, not from here. So I'll make a dotted line and touch this line. Okay, I'll make a dotted line. So the dotted line is going to go something like this. Okay, my line is not getting that much straight, but it should be a straight dotted line. Okay, and this is a right angle triangle that is being formed. This is a right angle triangle that is being formed. If this is 20.5, this is also going to be 20.5. 20.5. And I have to find this angle. Let's say this angle is theta for right now, because I don't know. So let's say this angle is theta. Okay, I don't know this angle. So this is, if I'm looking according to this angle, this is the perpendicular and this is the base and this is the hypotenuse. For your kind information, मुझे बस इतना इतना चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक इतनी इतनी हाइट चाहिए. तो कितना होगा ये, आप कैसे करोगे? इतनी इतनी हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक कैसे हाइट फिगर आउट करेंगे? ये पूरा 22 है, पर इसमें से मुझे इतना इतना चाहिए, क्योंकि ट्राइंगल जो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है इतने इतने में ही बन रहा है. तो आप क्या करोगे? 1.5 माइनस कर दोगे. इतना इतना 1.5 है, तो ये कितना आ जाएगा? 20.5. ओके, सो ये कितना आ जाएगा? 20.5. नाउ लेट्स हैव अ लुक कि जो बेस और हाइट इंक्लूड हो रहा है, आपने इस ट्राइंगल में देखा क्या क्या इंक्लूड हो रहा है? बेस एंड हाइट. सो बेस एंड हाइट कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में यूज होता है? मुझे पता है tan थीटा में होता है. tan थीटा कितना होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही होता है. नाउ tan थीटा, I will figure out what is perpendicular. Perpendicular is 20.5. If I look in this triangle, this is not a triangle. This is not being formed a triangle. This is a triangle. A proper triangle is this. Okay, this is the triangle. Upon what is the base? Base is 20.5. So if I cancel both of them, what will I be getting? 1. So tan theta equals to 1. But you all know that tan theta 1 कब आता है? जब tan 45 होता है, isn't it? tan theta 1 कब आता है? tan 45 में. तो tan and tan can get cancelled out, so it means my value of theta is 45.
degree. And this is what I had to find. This is what they told me. They told me to determine the angle of elevation. This is the angle of elevation I took at theta, and I got the value of theta as 45, if you guys see this. Okay, it's not a big question. The question is big, the solution is not that big. It's just you need to figure out the correct ratio. क्योंकि इसमें परपेंडिकुलर और बेस आ रहा है. अगर आप पूरे रेशियो देखो तो परपेंडिकुलर और बेस दो चीज में आते हैं. एक आता है कॉट में और एक आता है टेन में. आप कॉट भी ले सकते हो तब भी थीटा 45 आएगा, टेन ले सकते हो तब भी 45 आएगा. Okay, let's have a look in some other questions. Okay, let's have a look in question number 14. Question number 14 says an aeroplane when flying at a height of this much from the ground, ठीक है, passes vertically below another plane. This another plane that is above it at an instant when the angle of elevation of two planes from the same point on the ground are 30 degree and 60 degree respectively. Find the distance between the two planes at instant. तो क्या हुआ, if I just help you guys in this, how to, the very first thing or the very first job you need to do is make figure, right? So they said there was an aeroplane. Okay, so there's an aeroplane over here. This is the level ground. Okay, and the height between the plane and the level ground is 3125, I guess. Yes, 3125. And this plane, this is a plane. Okay, this is a plane. You can make a plane, or I don't know, you can make a plane. This is a plane, but this is flying under one more plane. This is plane 2. There's one more plane that is flying. और एक ये ऐसे चल रहा था, उसके नीचे आ गया. जब इसके नीचे आया तो इसका हाइट पता लगा हमें 3125 है ग्राउंड से, ठीक है, मीटर, 3125 मीटर. पर मुझे इन दोनों के बीच की हाइट ढूंढनी है, मतलब इन दोनों के बीच में कितना फ़र्क है. भाई टकराएंगे तो नहीं, कितना फ़र्क है. तो मैं इसको क्या कर दूंगा x, इसको क्या कर दूंगा x, यहाँ से लेके यहाँ तक. और यहाँ पे ना एक पॉइंट है जहाँ से ये दोनों एरोप्लेन को देखा जा रहा है. जब मैं इस वाले एरोप्लेन को देख रहा हूँ तो एक एंगल बन रहा है मेरा, और जब इस एंगल इसको देख रहा हूँ तो दूसरा एंगल बन रहा है. तो अगर आप ये देखें, और ये पॉइंट लेवल ग्राउंड में ही है, ठीक है, तो ये एंगल कितना बन रहा है और ये एंगल ज़्यादा बड़ा बन रहा है ना. तो ये तो लॉजिक है आपका, है ना. तो हमने क्या देखा, ओके, दैट ये एंगल कितना है, ये एंगल जो ये वाले है, जो नीचे वाला एरोप्लेन है उसमें जो एंगल बन रहा है वो है 30 डिग्री, ठीक है. और जो बड़े वाले जब दूसरा वाला जो ऊपर जा रहा है उसमें कितना एंगल बन रहा है, 60 डिग्री, ठीक है. और एक ही पॉइंट से देखा जा रहा है दोनों एरोप्लेन को, एक ही पॉइंट से. तो बोल रहे कि ये बताओ कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा. अब ये देखो, इसमें हमें फिगर आउट करने के लिए उसकी ज़रूरत चाहिए, किसकी, ट्रिग्नोमेट्री की. नाउ अगर आप देखो, मैं नाम दे देता हूँ इनको A B C D. सो इन ट्रायंगल ABC, ABC दिख रहा होगा आपको. तो मैं कौन सा पुट करूँगा, देखो मैं इसके बारे में तो बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूँ, इस लाइन के बारे में. मेरे पास दो लाइन है, परपेंडिकुलर और बेस. तो तभी मैं कौन सा लगा रहा हूँ, टेन थीटा. टेन थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस. सो मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, 1030 इज इक्वल्स टू व्हाट इज परपेंडिकुलर, 3125, और बेस मुझे नहीं पता. 1030 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल्स टू 3125 ओवर बी, और √3 उधर चल जाएगा. बेस, तो मुझे बेस की वैल्यू मिल गई. बेस की वैल्यू कितनी है, 3125 इंटू √3, ठीक है. अब आ जाओ दूसरे वाले ट्राइंगल में. दूसरा वाला ट्राइंगल क्या कहता है, इन ट्राइंगल ABD. जब मैं ABD ट्राइंगल में देखूं तब भी मैं टेन थीटा की वैल्यू लगाऊंगा, और उसका होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, आपको पता है. सो पर इसमें 1060 की वैल्यू लगेगी, 1060 या ले. अब मैं ABD में देख रहा हूँ, बड़े वाले में, ठीक है. परपेंडिकुलर क्या है इसमें, 3125 प्लस x. दिस इज परपेंडिकुलर, ये पूरा परपेंडिकुलर है यहाँ से लेके यहाँ तक.
तो ये पूरा डिस्टेंस कितना होगा 3125 प्लस एक्स अपॉन बेस मुझे वैसे भी नहीं पता, बट 1060 की वैल्यू मुझे पता है √3 होती है। तो √3 इक्वल्स टू 3125 प्लस एक्स ओवर बी। तो बेस ऊपर चला गया और 3125 प्लस एक्स और √3 नीचे आ गया। अगर आपने देखा तो मेरे पे दोनों बेस आ गए, मतलब बेस तो एक ही है पर मेरे पे दो इक्वेशन आ गए दोनों बेस के। पर आपको एक चीज़ तो पता ही होगा कि जब लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा। तो मैं राइट हैंड में लिख रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, ये इक्वेशन 1 and 2 है। सो फ्रॉम 1 and 2 व्हाट कैन आई राइट, 3125 √3 राइट इक्वल्स टू 3125 प्लस एक्स ओवर √3। अब √3 उधर जाएगा तो 3125 इंटू √3 और √3 मल्टीप्लाई होगा 3 हो जाएगा, 3125 प्लस एक्स। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास कितना आ जाएगा, 3 5 15, 6 7 3 3 3 9 और ये 3125 आ गया प्लस एक्स। और x की वैल्यू ढूंढनी थी हमें क्योंकि हमें डिस्टेंस ढूंढना था दोनों एरोप्लेन के बीच में। तो x यहाँ इसको इधर शिफ्ट कर दो, 9375 माइनस 3125 और आपके पास आंसर आ जाएगा। जो आंसर आएगा वो आपकी क्या वैल्यू होगी, वो x की वैल्यू होगी जो कि डिस्टेंस बिटवीन द टू एरोप्लेन था। तो हमें कुछ नहीं पता इसमें, हमें बस पहले वाले एरोप्लेन की हाइट पता थी और हमें दो एंगल पता है, ठीक है। और उन दोनों एंगल से मैंने ये पता कर लिया कि भाई ये दोनों एरोप्लेन के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। अच्छी बात ये होती है कि ट्रिग्नोमेट्री से हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं जहाँ पे इंसान इंच टेप लेके पहुँच नहीं सकता, और ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है आपके पास, ठीक है। आई होप यू गाइस आर अंडरस्टैंडिंग दिस एग्जाम्पल। Okay, let's have a look in one of more question, that is question number 17. 17 is also included in your homework today. So I just wanted to help you guys so that you guys can understand. I'll read the question for you. From the top of a hill, an angle of depression of 2 consecutive kilometer stones due to east found to be 30° and 45° respectively. Find the distance of the stones from the foot of the hill. I need to find the distance of the stone from the foot of the hill. Now you know what, you guys are amazing, so you guys should understand this, that there's a hill and I'm making a hill in a perpendicular like this, okay. And you know angle of depression is always measured from the horizontal line that is going to come over here. So एक स्टोन तो यहाँ पर है, ठीक है। एक स्टोन यहाँ, किलोमीटर स्टोन होते हैं ना, जब आप रास्ते में घूमने जाते हो तो किनारे किनारे रोड के किलोमीटर स्टोन होते हैं, 2 किलोमीटर चलो कोई 3 किलोमीटर प्रेमनगर ऐसे लिखा रहता है। तो यहाँ पे जब मैं एंगल बना रहा हूँ ऐसे करके तो एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ बन रहा है, ठीक है। तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है मेरे पास वो पहला कितना बन रहा है 45°, ओके। ये वाला 45° बन रहा है, ओके 45°, ठीक है। फिर इसके बाद एक और स्टोन आ रहा है और कॉन्सिक्यूटिव स्टोन लिखा है। आपको इसमें ना थोड़ा लॉजिक पुट करने की जरूरत है। कॉन्सिक्यूटिव स्टोन मतलब अगर ये 13 किलोमीटर है तो ये 14 किलोमीटर होगा। तो एक और स्टोन आ रहा है बाद में और उसका कितना डिस्टेंस होगा, मतलब उसका कितना एंगल, ये कितना एंगल बन रहा होगा इसके हिसाब से, दैट इज यू कैन इमेजिन कितना बन रहा होगा, ओके। तो 30°। बट मुझे इन दोनों स्टोन्स के बीच का डिस्टेंस पता है कितना है, 1 किलोमीटर, क्योंकि कॉन्सिक्यूटिव है ना। और इसके बीच का और इसके बीच का नहीं पता तो मैं एक्स लिख रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे पास कितने राइट एंगल ट्राइंगल हो गए जिसमें मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा सकता हूँ। मेरे पे दो, एक तो ये हो गया ABC और ये D वाला दूसरा। सो आई विल बी लुकिंग इन द वेरी फर्स्ट ट्राइंगल दैट इज इन ट्राइंगल ABC. So if I have a look in triangle ABC, I'll again put tan theta. Why I am putting tan theta? Because base and the perpendicular I need. And why I am taking perpendicular? Because perpendicular is common in both the triangles. You'll see that is equals to AB upon x. और 45 की पता है आपको, यहाँ 45 आ जाएगा तो tan 45 इक्वल्स टू AB ओवर x, और 45 tan 45 1 होता है,
ओके, होता है कि नहीं। तो 1 इधर आ जाएगा और x ऊपर आके मल्टीप्लाई आ जाएगा ए बी। तो ए बी कितना आ गया आपके पास x। चलो दूसरा ट्राइंगल में देखते हैं। इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी में देख लेते हैं जो ये बड़ा वाला ट्राइंगल है, ठीक है। तो इसमें क्या है, 10 30 की वैल्यू पुट करूँगा मैं, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है आपका ए बी, क्योंकि परपेंडिकुलर बिल्कुल ऑपोजिट में होता है जो भी एंगल के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। ए बी है परपेंडिकुलर, ओके। सो नाउ व्हाट विल बी डूइंग 30, और इसका बेस कितना होगा x+1, क्योंकि ये तो x है, ये पूरा मिला के x+1 हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे 10 30 की वैल्यू पता है। 10 30 की वैल्यू कितनी है, 1/√3, ओके। और फिर x+1 ऊपर आ जाएगा, ए बी अपॉन x+1, x+1 ऊपर आ गया अपॉन √3 इक्वल्स टू ए बी, राइट। सो मेरे पे ए बी की दो वैल्यू होगी अगर आप देखो तो मैं लिखूंगा, अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड फ्रॉम इक्वेशन 2 आई विल बी कीपिंग x इज इक्वल्स टू x+1/√3। आप सोचोगे x कहाँ से आया, x यहाँ से आया, इधर से, ओके, x इधर से आया, ए बी इक्वल्स टू एक्स और ए बी इक्वल्स टू x+1/√3, ठीक है। अब ये √3 इधर चल जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, √3x इक्वल्स टू x+1, ठीक है। नाउ व्हाट आई हैव टू डू इज, नाउ आई विल बी मेकिंग श्योर दैट आई शिफ्ट एवरीथिंग ऑन वन साइड जो x वाले हैं। तो √3x माइनस x इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब इसमें कॉमन x है तो कितना आ गया मेरे पास, √3 माइनस 1 इक्वल्स टू 1। अब x इक्वल्स टू 1 अपॉन √3 माइनस 1, है ना। अब इसको आपको रैशनलाइज करना आता है, रैशनलाइज करना आता है तो आप रैशनलाइज कर दीजिए इसको, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो x इक्वल्स टू 1/√3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1 टू √3 प्लस 1, ठीक है भैया। अब मैं जब इसको रैशनलाइज कर रहा हूँ तो मेरे पे कितना आएगा, √3 प्लस 1 ऊपर आ गया और नीचे कितना आ गया, a माइनस बी, ए प्लस बी का, तो 3 माइनस 1 दैट इज़ 2, ओके। अब आप वैल्यू डाल दीजिए, वैल्यू क्या डालोगे, √3 की, √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.732 प्लस 1, राइट, अपॉन 2। तो x कितना आ गया आपके पास, 1 ऐड कर दोगे तो यहाँ पे कितना आ गया, 2.732/2। सो जब आप कैंसिल आउट करोगे इसको तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.366 किलोमीटर, ठीक है। तो आपकी एक तो x की वैल्यू आ गई, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक के स्टोन के बीच में कितनी वैल्यू है, 1.366 किलोमीटर, ठीक है। अब दूसरे वाले स्टोन के बीच में कितनी होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक बस एक ऐड और कर दो, कितना डिस्टेंस हो जाएगा दूसरे वाले इसमें, तो इसमें बस 1 किलोमीटर और ऐड कर दो। जो 1 किलोमीटर आप ऐड करोगे तो ये तो हो जाएगा 2.366। सो आपके दो आंसर आएंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी 1.366 है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी 2.366 वैल्यू, ठीक है। आई होप यू guys understood this. So these are some examples done in this video in order to make you guys understand. Hope you guys understood. Have fun. Have a good day. Thank you so much.